Shame must switch sides. The blame must switch sides. No person becomes a rapist overnight. There is a journey from zero to rape, and there is a journey from rape and beyond. If we are able to stop a person from harassing, we actually prevent a rape from happening later on. Lakhisarai, Midnapur, Assam, Tripura, there are these districts जहाँ 55-57% है prevalence rate. हर दो में से एक बच्ची की शादी हो जाती है 18 से कम. इलॉन मस्क को पता नहीं है कि ग्रोक जो है वो बच्चों को किस तरह से डिस्टर्ब करता है. वो 3 लड़कियां जिन्होंने अभी सुसाइड कर लिया, एक कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस होके, उनके माता पिता की क्या गलती थी? सिर्फ ये कि वो ये कह रहे थे कि ये जो है कोरियन इस तरह की चीजें और इस तरह का बिहेवियर मत करो, हम तुम्हारा स्मार्टफोन ले लेंगे. Our children are no longer safe in the sanctuary of their homes. पेरेंट्स आर थिंकिंग हमने स्मार्टफोन दे दिया, हम प्रोग्रेसिव हैं. वो इस तरह की सोच रखते हैं कि हम तो फ्रेंड्स हैं बच्चों के. वी आर बीइंग एज फ्रेंड्स. योर जॉब इज नॉट टू बी फ्रेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन, योर जॉब इज टू बी पेरेंट्स. छोटी सी कंप्लेंट थी कि ये बच्ची रो रही है. मैं गया, ताला लगा हुआ था, छत थी, तो मैं छत टाप के दूसरी तरफ गया. एक तखत से के नीचे कुछ कपड़ों का ढेर दिखा. मैंने आवाज दी तो वो ढेर हिला. Hi and welcome to yet another episode of the Lifesaver Show. Today's conversation will make us uncomfortable. It'll make us uneasy. It'll make us squirm. It'll make things a bit difficult. My guest today is Bhuvan Ribhu, who is a child's rights activist and a lawyer, and who's been fighting for the cause of children, the most helpless voices of all. Bhuvan, welcome to the Lifesaver Show. Thank you. Thank you for having me. First, आपका why क्या है? Why is it that you do what you do? For the exact same reasons probably that you just mentioned. जी. पाश ने कहा, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का और सब सहन कर जाना. घर से निकलना काम पर और काम से लौट के घर आना, और सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना. Each one of us gets upset when we see things happening around us that make us uncomfortable. Yeah. मुझे injustice नहीं पसंद, मुझे दुनिया में inequality नहीं पसंद, मुझे डर नहीं पसंद. मुझे नहीं अच्छा लगता कि लोग जो है वो डर के माहौल में जिएं. और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे तब लगता है जहाँ पे हमने, we the people of India, we have promised ourselves certain rights through the constitution, through the laws. हमने अपने आप को प्रॉमिस किया कि हम एक सुरक्षा का माहौल कैसे बनाएंगे. जब उन लॉज के होते हुए भी, उन पॉलिसीज़ के होते हुए भी हमारे बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं, हमारी माताएं बहनें असुरक्षित महसूस करती हैं, जब हमारे भाई, हमारे पिताओं को ये डर लगता है कि मेरी बेटी रात को बाहर कैसे निकलेगी और कैसे घूमने जाएगी, जब हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को रोज सुबह ये सोचना पड़ता है कि मैं किस तरह के कपड़े पहन के आगे बढ़ूं, जब हर माता पिता ये सोचते हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा अगर ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो कोई ऐसा तो नहीं कि उनको ऑनलाइन अब्यूज कर दे. ये जो हमारे कदम कदम पे प्रतिदिन डर का माहौल है, ये इसलिए है क्योंकि there is impunity in the world, impunity against crime, impunity on the issue of child sexual abuse. बच्चों के abuse को लेके, injustice को लेके, people think they can get away with it. That is what upsets me. That is what I work for. I work for the protection of children. That is all. आपकी जर्नी के बारे में मुझे बताइए. Where did this begin and where did this whole thing start, where you wanted to work for the protection of children? I was practicing law. Okay. And I was working on a specific project on child labor in Indian circuses. So in this one particular case, the girls had been trafficked from Nepal and they had gone missing. And we managed to find that they were in a particular circus in Uttar Pradesh. And as we went to rescue the girls, we found out that the police, the local administration was quite collusive in both the exploitation as well as in the illegal
the illegality of it. Okay. So we were beaten up very badly. And post that, I realized that while we were looking at the issue, we were not looking at it in depth. So if a child is taken from a place in Assam, in West Bengal, in Chhattisgarh, in Odisha, in Bihar, and there is an entire organized crime syndicate bringing that child to a place like Delhi Yes. to work in our homes, for example. So a domestic servant who's 14 years old, we think that they are doing it because of poverty. We might think that they are doing it because of some necessity. But they are victims of the organized crime of trafficking. So even if that child is rescued from Delhi, it doesn't really combat that organized crime because the entire chain of supply and demand has not been combated. Ji. So in 2004, I set up an organization to work primarily on the issue of trafficking and for the protection of children from the organized crime of trafficking for forced labor. Okay. And That was called Just Rights. no, that was called Save the Childhood Foundation. Okay. And I actually thought that child protection should be a criminal justice issue. It should not be a social justice issue. तो 2005 में जी. मैं एक रेस्क्यू ऑपरेशन में गया चाइल्ड लेबर के. मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि आज दिल्ली सरकार 500 बच्चों को रेस्क्यू करेगी. मुझे ये पता था कि इतने बच्चे किस जगह दिल्ली में काम करते हैं. तो बगैर किसी और से बात किए गाड़ी उठा के मैं एक दो कलीग्स के साथ उस डायरेक्शन में जमुना पार गोंडा चौक के इलाके में चला. मैंने वहां देखा 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने एक एरिया कॉर्डन ऑफ कर रखा है. इनफैक्ट बसें हैं वहां 70-80. What was it? A factory or something or what? मल्टीपल फैक्ट्रीज. जरी में बच्चे काम कर रहे हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर. एम्ब्रॉयडरी में जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें जो ये एम्ब्रॉयडरी है उसमें बच्चे काम कर रहे हैं. बच्चे सारे ट्रैफिक करके लाए गए हैं बिहार से, झारखंड से, कहीं कहीं से, और ये सब काम कर रहे हैं. 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे सुबह 8 बजे से रात को 10-11 बजे तक ये काम करते हैं. जी. 10 बाय 10 के कमरे में छोटे छोटे अड्डे लगा के हफ्ते के 50 रुपए के लिए ये काम करते थे. हफ्ते के 50 हफ्ते के 50 रुपए के लिए 12 घंटे की मजदूरी है, सिर्फ 3 टाइम का खाना मिलेगा. और कहा यह जाता था कि ये बच्चे सीख रहे हैं. एक जिसे कहते हैं कि हम तालीम दे रहे हैं, स्किलिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो ये सारे बच्चे रेस्क्यू हो गए, 450 से ज्यादा. वहां पे एम्प्लॉयर खड़े होके दिल्ली के पूरे लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस महकमे के सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, ये बच्चा मेरे यहाँ काम करता है, इस बच्चे को जो है अब छोड़ो. और दिल्ली पुलिस ये कह रही थी, या लेबर डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि हम शाम को जो है इसको जो खाना पूर्ति करके और लिखा पढ़ी करके छोड़ देंगे. मैं 2004 की 5 की बात कर रहा हूँ. कितने साल के थे ये बच्चे? 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल. और मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त किसी की कोई जवाबदेही नहीं थी. मैंने वहां खड़े होके जो है इनसे बहस करनी शुरू की. ये रहा एम्प्लॉयर जो कह रहा है मैंने बच्चे को एम्प्लॉय किया है. ये रहा बच्चा जो कह रहा है कि मैं एक तरह से बॉन्डेड लेबर में हूं, ट्रैफिकिंग में हूं. ये रहे आप इसको उठा के बंद क्यों नहीं कर रहे? तो क्योंकि कोई ऐसा लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, कोई लॉ नहीं है, सब हवाबाजी चल रही है. और जब मैंने ये बात 2-3 जगह चिल्ला चिल्ला के कही कि उठा के ये करिए, तो मुझे जो है उस वक्त के जो भी वहां हेड थे, दिल्ली के ज्वाइंट लेबर कमिश्नर, उन्होंने कहा कि इस आदमी को ही उठा के जो है यहाँ से बाहर फेंक दो. तो बड़ा मतलब थोड़ा सा यंग भी था, तो ज्यादा बॉयस्टरस था. लड़ाई झगड़े हुए, मुझे वहां से निकाल दिया गया. जब मैं वहां से निकला तो किसी जर्नलिस्ट ने वहां एक मुझे बात करते हुए सुना था, और जर्नलिस्ट ने फोन करके कहा कि एक राजपुर रोड पे ये पूरी घटना है जमुना पार की, गोंडा चौक की, और मैं वहीं से निकल रहा था ISBT के पास से. तो ये एक राजपुर रोड पे किसी बच्ची के रोने की कंप्लेंट आ रही है. अब नॉर्मली ये होता है कि पुलिस को कॉल करो या कुछ करो. चूंकि मैं उस एरिया में था तो मैंने कहा मैं जाके 2-4 किलोमीटर की बात है, 10 मिनट में देख लेता हूँ. छोटी सी कंप्लेंट थी कि ये बच्ची रो रही है. मैं गया, ताला लगा हुआ था. पड़ोसी का बेल बजाई, फ्लैट सा था. उन्होंने कहा दूसरी मंजिल पे कि छत पे बच्ची रो रही है. पड़ोसी ने कहा कि कंप्लेंट मैंने की थी और बच्ची के रोने की आवाज आ रही है, सुबह से हमें पता नहीं है.
तो मैंने कहा आपके घर से ऊपर चल के देख लेते हैं छत पे। उनके घर से छत थी, तो मैं छत टाप के दूसरी तरफ गया। वहां एक तखत से के नीचे कुछ कपड़ों का ढेर देखा। मैंने आवाज दी तो वो ढेर हिला और एक छोटी बच्ची उठी और अपने आप को ढकते हुए वो कपड़ों से उसने 2-1 कदम आगे बढ़ाए और एकदम से ऐसे बेहोश होकर गिर गई। मैं उसको जब तक पकड़ता, बोरी की तरह वो गिरी। उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। वो अपने आप को ढकने के लिए 21 नवंबर 2005 की शाम को, ठंड हो चुकी थी दिल्ली में, वो अपने आप को किसी तरह ढकने के लिए फटे हुए जो चादरें और इस तरह की चीज़ें होती हैं उससे ढक रही थी। मैंने तुरंत 100 नंबर कॉल किया। एक वहाँ सब इंस्पेक्टर आए, ASI है बल्कि, परमिंदर सिंह। बच्ची को उठा के उन्होंने आते ही कहा तुम अंदर कैसे घुसे, ये कैसे हुआ? ये घर दिल्ली सरकार के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के एक बहुत ही सीनियर अफसर का घर था। आप अंदर कैसे घुसे? मैंने उस बच्ची को अपनी जो मेरे पास शर्ट सी थी वो उतार के ढक दिया था, तो मैंने उसको हटाया। तो उसने कहा तुरंत अस्पताल ले चलो। तुरंत जो है बच्ची को उठा के हम हॉस्पिटल ले गए, सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल। बच्ची को अंदर इमरजेंसी में भेजा, हम बाहर निकले। वहाँ कुछ चाय वाय पी रहे थे। थोड़ी देर में एक SHO आए। SHO ने आके हमें डांटना शुरू कर दिया, तुम अंदर कैसे घुसे, ये क्या हुआ? तो वो ASI SHO को साइड ले गए, उन्होंने कुछ समझाया। SHO मेरे पास आया और बोला वकील साहब 10 मिनट का टाइम देता हूँ, जो FIR काटनी है काट लो, उसके बाद कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली में या भारत में हम अक्सर पुलिस के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं पुलिस ये काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही, पर पुलिस भी आदमी है, ह्यूमन है। वो किन दबावों के अंदर काम करती है ये हम सोच भी नहीं पाते जी। कभी यहाँ से फोन, कभी वहां से फोन, कभी इसका, कभी उसका, कभी वो अफसर, कभी वो राजनेता, और कुछ नहीं तो मीडिया। तो यहां इसने कहा जो FIR काटनी है काट लो, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद तो बच्ची को इमरजेंसी में छोड़ के हम दोनों जो है वो थाने पहुंचे। थाने में मुझे लगा कि FIR तो कट ही नहीं सकती, कोई कानून ही नहीं है उस वक्त। ट्रैफिकिंग का कोई लॉ नहीं था, चाइल्ड लेबर जो है वो पुलिस का जिम्मेदारी नहीं थी। अब और पता हमें कुछ है नहीं। बच्ची ने एक शब्द नहीं बोला है अभी तक कि किसने क्या किया है। कितने साल की होगी? 11-12 साल की। 11-12 साल की बच्ची, शरीर पे एक कपड़ा नहीं और पूरे शरीर के ऊपर कट्स लगे हुए। मुंह यहां से यूं सूजा हुआ, किसी में पूरी पीठ पे जो है कहीं खून बह रहा, कहीं पीप निकल रही, कहीं मवाद बह रही, कहीं जो है सूख के जो पपड़ी जम जाती है उस तरह की। तो जैसे कांटों से मारा गया हो, इस तरह की बुरी हालत में वो बच्ची। तो उस ASI ने मुझे कहा, जो आज भी मुझे गाइड करती है बात, कि तुम्हें कानून चाहिए या न्याय? डू यू वांट लॉ और डू यू वांट जस्टिस? ये तुम्हारा काम नहीं है सोचना कि FIR कटने के बाद वो उसको सजा मिलेगी या नहीं। तुम्हारा काम है आज इस बच्ची को मदद करना, और आज मदद कैसे मिलेगी सिर्फ उतना कानून बताओ और भूल जाओ। सो हमने दिल्ली की क्या, भारत की पहली FIR काटी चाइल्ड लेबर की उस दिन शाम को, अंडर उस वक्त सेक्शन 26 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। हमने एक बहुत ही अजीब सी इंटरप्रिटेशन लाए कि whoever ostensibly procures a child or a juvenile for a hazardous employment and withholds the earnings of the child and keeps him in bondage is punishable। तो हमने कहा कि ये प्रोक्योरमेंट हुआ है, फॉर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट हुआ है। अब हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट था नहीं, कहीं डेफिनेशन नहीं थी। हमने कहा करो, डाल दो, देखी जाएगी, कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है। बच्ची को लेके हम रात को जब वापस आए वहां अपना अस्पताल, तो पता चला बच्ची को बाहर निकाल के छोड़ दिया है, बेहोश बच्ची, और डॉक्टर कह रहे हैं ले जाइए। क्यों? ऑब्वियसली उनके ऊपर दबाव था। हमने जो है बच्ची को उठाया, हम उसको लेके जब उसको होश आया तो वहाँ गए थाने, वहाँ पे उसको जो है खाना वाना खिलाया। कोई भारत में, दिल्ली में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं थे कि बच्चे को कौन कहाँ लेके जाएगा, किस तरह से होगा। तो उसे हम मदर टेरेसा के होम में ले गए रात को 11 बजे। वहाँ हमने हाथ जोड़े कि हम इस बच्ची को नहीं रख सकते, आप किसी तरह रख लीजिए, कपड़े वपड़े दे दीजिए और चीज़ें कर दीजिए। वो अस्पताल के गाउन में थी। अब
उसको लेके जो है हम छोड़ के रात को घर आए और रात को बैठ के हमने जो है ये केस ड्राफ्ट किया, जो बाद में मील का पत्थर साबित हुआ, सेव द चाइल्डहुड फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे एक वकील दोस्त हैं विवेक त्यागी जी, वो रात भर बैठे हमारे साथ, उन्होंने और हमने बैठ के ये किया। और ये इसी केस में पहली बार डिफाइन हुआ कि पुलिस की जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है इन अ चाइल्ड लेबर केस। एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एमसीडी की, हेल्थ की, सबकी, कि ये बच्चे कोई आसमान से टपक के सीधा एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है। ट्रैफिकिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन एक्सप्लॉइटेशन। Anything that results in exploitation is trafficking, and that is why it was prohibited by our forefathers as a punishable offense in the Constitution of India. We just needed to enforce it. तो बाद में जब इस केस में जजमेंट आई 2009 में, और बाद में 2013 में जब ये दिल्ली में बहुत ही विभत्स निर्भया का केस हुआ, तो तब ईश्वर की कृपा से हमको ये मौका मिला कि हम जस्टिस वर्मा कमेटी के साथ कुछ इस पे काम कर सकें और उनको असिस्ट कर सकें। तो नई ऑफेंसेस जो वो पूरी प्रोसेस को लेके जाती हैं, स्टॉकिंग, वोयूरिज्म, ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक पर्सन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन केसेस पर्टेनिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये तमाम जो नए कानून थे भारत में, इनको बनाने में हमने थोड़ी बहुत भूमिका अदा की। और जो ये बच्ची है, मैं इसका नाम अंकिता कहूँगा नाम बदल के जी। तो ये बच्ची जब अगले दिन इसको हम थाने लेके गए, वहाँ मदर टेरेसा के होम से इसको कोर्ट लेके गए, और कोर्ट से इसकी जो है कस्टडी, उस वक्त कोई चाहिए था जो कि कस्टडी कौन लेगा बच्ची की, तो हमारी माता जी को हमने कहा कि आप जाके कस्टडी ले लो, तो उन्होंने ये ली। और शाम को मैं अपने ऑफिस में बैठा था इसी केस की तैयारी करते हुए, 5 बजे के आसपास जो है मेरे पास फोन आया, घंटी बजी, मैंने ऐसे ही उठाया, दूसरी तरफ से एक फीमेल वॉइस ने कहा कि जल्दी से नीचे आ जाओ। मेरा ऑफिस 4थी मंजिल पे था, तो जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं खाने पे वेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं बिजी हूँ, रख दिया मैंने, मुझे लगा ऑफिस से किसी का। फिर 2 मिनट के बाद फिर आया, जैसे ही मैंने रखा कि जल्दी से खाने पे आ जाओ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, नहीं आओगे तो मुझे लगा मेरी माता जी। तो मैंने तुरंत जो है कहा कि यार मैं बिजी हूँ, अभी तो बताया, थोड़ा मैं तल्खी से बोला कि मैं बिजी हूँ, अभी तो बताया, अभी नहीं आ सकता, बाय। फिर आया, अगर तुम नीचे नहीं आए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मुझे समझ आया माता नहीं है, तो मैंने तुरंत जो है अपने उससे पूछा कौन बोल रहा है, और दूसरी तरफ से आवाज आई कि अपने आप को बड़ा वकील समझते हो, मुझे एक दिन में भूल ही गए। मैंने फोन रखा और मैं रोने लगा, और मैं आज भी अगर याद करूंगा तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 24 घंटे की आजादी, एक मरणासन्न बच्ची जो मरने वाली थी मेरे हिसाब से कि ये पता नहीं बचेगी कि नहीं, उसमें इतना कॉन्फिडेंस भर देती है कि वो एक आदमी को हक के साथ ये कहती है कि तुम अपने आप को बड़ा वकील समझते हो, मुझे एक दिन में भूल भी गए। तो मैं अपना मुंह धो के थोड़ी देर के बाद नीचे गया, उसके साथ मैंने खाना खाया, और बाद में जो है पता चला कि वो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी थी। अच्छा। खुद, जिसने ये सोच के उसको दिल्ली भेज दिया था कि मेरे गांव के बड़े भाई साहब के बच्चों के साथ ये रहेगी, इंग्लिश बोलना सीख जाएगी, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया तो जीवन में तरक्की नहीं कर पाया, ये बच्ची के साथ ये तरक्की कर लेगी। वो 1.5 साल तक, 1 साल तक उस आदमी ने उस बच्ची की सुध नहीं ली। और ये पढ़े लिखे लोग, ये संभ्रांत लोग, ये अफसर लोग इस तरह से बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उस बच्ची के साथ क्या अब्यूज हो रहा है, सवाल ये है कि क्या उसके आसपास रह रहे किसी को नहीं पता चला, इतने दिन तक किसी ने नहीं देखा। आज भी लड़कियां ट्रैफिक होके जब आती हैं, आज भी हमारे घरों में जब वो काम करती हैं, तो हम दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। ये उसी तरह से है कि आज भी अगर बस में किसी को चलते हुए कोई छेड़ता है तो हम दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। नो पर्सन बिकम्स अ रेपिस्ट ओवरनाइट। देयर इज अ जर्नी फ्रॉम जीरो टू रेप, एंड देयर इज अ जर्नी फ्रॉम रेप एंड बियॉन्ड। If we are able to stop a person from harassing,
we actually prevent a rape from happening later on. जब आदमी को आप हैरेसमेंट करने देते हो, जब आप स्टॉकिंग को हमारी मूवीज में, हमारे सीरियल्स में आप ग्लैमराइज करते हो, जब आप ये कहते हो कि लड़की का पीछा करना एक्सेप्टेबल है, जब आप ये कहते हो कि लड़की के साथ इस तरह से बदतमीजी करना एक्सेप्टेबल है, तो आप उस कल्चर को बढ़ावा देते हो जिस कल्चर में रेप एक एक्सेप्टेबल चीज हो जाती है, ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन एक एक्सेप्टेबल चीज हो जाती है. ये जो कल्चर है ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज व्हाट वी नीड टू ब्रेक. दैट इज एक्चुअली द व्हाई वी डू व्हाट वी डू. जब मैं आपसे मिली थी आपके ऑफिस में, आपने मुझे बोला था दैट इफ अ सोसाइटी फेल्स टू प्रोटेक्ट इट्स चिल्ड्रन, नथिंग एल्स मैटर्स. What does that belief mean for you in everyday work and in everyday life? हम कह रहे हैं कि if we fail to protect our children, nothing else we do in life matters. जी. The thought process is that it is our children. And मेरे बच्चे हों, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे समाज के बच्चे हों, जी. अगर उनका अब्यूज होता है तो आने वाला भविष्य हमारा असुरक्षित है. A child abused today is either a victim forever or may turn out to be an angry person who is actually a burden on society and may commit to crime later on. जो ये निर्भया का केस था, जिसमें ये कहा गया कि एक जुवेनाइल था जिसने बहुत ज़्यादा वायलेंट तरीके से किया था, मैं उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स पे नहीं जा रहा, पर वो बच्चा ट्रैफिक होके दिल्ली आया था, वो अब्यूज्ड था, वो एक रहता था क्या कहते हैं 20 आदमियों के साथ एक कमरे में शाहपुर जट में. वो अगर आधा घंटा पहले उस बस को किसी पुलिस वाले ने रोक लिया होता तो वो बच्चा रेस्क्यू होता एज अ ट्रैफिक चाइल्ड लेबर. तो वो जो कि खुद आज अब्यूज हो रहे हैं बच्चे, वो कल समाज के ऊपर किस तरह का बर्डन बनेंगे कोई नहीं बता सकता. जी. और दूसरी तरफ अगर बच्चों का जो एक कल्चरल एक्सेप्टेंस है अब्यूज का, लाइक चाइल्ड मैरिज फॉर एग्जांपल. नाउ हु वुड बिलीव कि 23% ऑफ गर्ल्स इन इंडिया गेट मैरिड बिटवीन द एजेस ऑफ 18 and 25 टिल अबाउट 2021. 1 out of 4 girls. लखीसराय, मिदनापुर, आसाम, त्रिपुरा, देयर आर दीज डिस्ट्रिक्ट्स जहां 55-57% है प्रेवलेंस रेट. हर 2 में से एक बच्ची की शादी हो जाती है 18 से कम में. वो बच्ची, शी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. यानी 1 out of 4 गर्ल्स इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. सेकेंडली, देयर आर इश्यूज ऑफ हेल्थ, there are issues of there is a lack of education, there is a lack of skilling, so they themselves are a burden on the economic this thing of the society. तो एक तरफ आप बच्चे का अब्यूज कर रहे हो, वो उसके साथ अत्याचार है, दूसरी तरफ आप जो है उसका पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा जो फ्री और फेयर हो, तो वो बाकी लोगों के ऊपर एक बर्डन है. और तीसरी तरफ अगर हम किसी बच्चे के अब्यूज के बाद मान लीजिए कि लॉ कहता है 2 महीने में उसका ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए या 1 साल में ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए, और 10 साल तक उसको ड्रैग करते रहते हैं, तो वो पैसा तो हमारा ही है. सो एवरीथिंग इज एन इकोनॉमिक बर्डन. सो दैट इज व्हाई फॉर द गोल ऑफ अ विकसित भारत वी मस्ट एंश्योर जस्टिस, वी मस्ट एंश्योर सिक्योरिटी फॉर एवरी चाइल्ड एंड फॉर स्पेशली द women. During these child marriages, whoever is involved, जैसे आपने बोला था, अगर मैं वहां पे समोसा भी खाने जाऊं तो I am also to be blamed because मैं उस शादी में शरीक हो रहा हूं. थोड़ा I want you to explain to me in detail who all is involved, who all do you think are the perpetrators of this crime? So सबसे पहले चाइल्ड मैरिज इज इम्पेंडिंग चाइल्ड रेप. वी हैव टू अंडरस्टैंड चाइल्ड मैरिज ये नहीं है कि कोई सेलिब्रेशन की चीज है, वो एक बच्ची के साथ होने वाला सेक्सुअल अब्यूज है बाय लॉ. ये भारत का कानून भी है और ये हमारी समझ भी है. अब उसमें जो लॉ कहता है वो कहता है कि पंडित जी, टेंट वाले, शादी में शरीक होने वाले, समोसे खाने वाले, कोई भी जो उसमें है, दे आर ऑल गिल्टी. शादी कराने वाले तो हैं ही हैं, लेकिन महिलाएं खास तौर पे, जैसे लड़की की माँ या लड़के की माँ के ऊपर वो नहीं होगा, पर लड़के के पिता के ऊपर FIR काटी जा सकती है. दूसरा,
ये भी हमें समझना चाहिए कि बात ये नहीं है कि कोई 16 साल की लड़की 17 साल के लड़के से ही शादी कर रही है। 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की बच्चियों को अगर 30 साल का आदमी शादी के नाम पे बहलात फुसला के लेके जा रहा है, ये सो कॉल्ड लव अफेयर की बात हो रही है। मैं रोज अखबारों में देखता हूं, अलग अलग कोर्ट कह रहे हैं कि ये तो रोमियो जूलियट मामला है। 40 साल का आदमी 14 साल की बच्ची, कौन सा लव अफेयर है? Pedophilia is being structurally defended when we say this was a love affair. A 14-year-old girl does not fall in love with a 42-year-old married man. The 42-year-old married man is taking advantage of the 14-year-old girl, abusing his power and using the position of vulnerability of the child. कल मैं किसी केस में देख रहा था, 25 साल की बच्ची, 25 साल का आदमी और 13-14 साल की बच्ची. This is not Romeo or Juliet law. So all of us need to understand that consent of a child is no consent. And in a case of child marriage, no religion permits for the rape of our children. And for the protection of children on one side, but for the economic development of the nation, it is essential that our girls get education. They get access to school, they get access to skill, they get access to some sort of scholarship or government scheme to ensure their safety and to achieve the full potential of not only the children, but also the full potential of the society of India as a nation. Therefore, child marriages must end here and now. And it is also not a crime which is happening somewhere in hidden. It is right there in amongst us. वो जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि we have a tendency to look the other way or to actually accept a crime simply because ये तो होता ही है. Just because ये होता ही है का मतलब ये नहीं है कि ये सही है. ये होता है पर है तो गलत. तो जैसे ही कोई कह देगा, मैं बचपन में कहानी सुनी थी कि एक राजा ने कहा कि मैं जो है ये अपने लिए एक चोगा बनवा लेता हूं और ये चोगा बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये इनविजिबल है. और राजा बगैर कपड़ों के चलने लगा तो सब लोग जय जयकार करने लगे सिवाय एक बच्चे के जिसने कहा कि ये राजा जो है वो बगैर कपड़ों के क्यों घूम रहा है. द किंग वॉज रोमिंग अराउंड नेकेड बट अ चाइल्ड कॉल्ड इट आउट. एवरीबडी एल्स स्टेड साइलेंट. Silence in the face of the exploitation of our children is violence. And that culture of violence can only be broken when we speak up. When we speak up, we actually stop that crime. That is what I would like each one of us to take up as our responsibility. It is just amazing. I wish everybody could actually think and act like him. But मोहन, जब आप ये सब आपने जब चाइल्ड मैरिजेस के लॉज रीडिफाइन किए हैं और आपने ट्रैफिकिंग के लॉज रीडिफाइन किए हैं, आपको लोकल पंचायत या पुलिस से रेजिस्टेंस मिली? हमेशा. कैसे? भाई ऐसा है कि ये तो मान आपने वो उनका थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करने की कोशिश करी है? देखिए, फर्स्ट they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win. तो अब आप पंचायत का थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे तो पूरे इकोसिस्टम पे जाइए. तो हम एक तरफ सुप्रीम कोर्ट गए ये कहने कि भैया कॉल अ स्पेड अ स्पेड, दिस इज अ क्राइम. यस. दूसरी तरफ हमने जो है पहले 10 साल पहले मैं सुप्रीम कोर्ट गया ये कहते हुए कि चाइल्ड मैरिज शुड बी ट्रीटेड एट पार विद चाइल्ड रेप. जी. सो ये हमारे कुछ कलीग्स ने इसका इंटरप्रिटेशन निकाला था और फिर हम उसको लेके गए. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में इसको मान लिया. 1.5 साल पहले 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत की अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही सुनिश्चित कर दी. हम भारत सरकार के पास गए कि दिस रिक्वायर्स अ होल ऑफ सोसाइटी एंड अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच. इट कैन नॉट बी डन बाय ईदर. ना सोसाइटी में खत्म होगा ना गवर्नमेंट कर पाएगी. सब साथ आए. हमने कहा पूरे देश में चलें वो और प्रण लें, प्लेज करें कि चाइल्ड मैरिज के हम खिलाफ हैं. चाइल्ड मैरिज की बात कर रहा हूं, बाकी चीजों के लिए और अप्रोचेस हैं. तो हमने एक स्ट्रैटेजी निकाली, पिकेट. हमने कहा पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नॉलेज, इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी सबको यूज करें
और शुरुआत की कि प्रण लेके पहले प्लेज करेंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वचन दो कि शादी नहीं करेंगे। उसके बाद अगर तुमने वचन भंग किया तो फिर कानून अपना काम करेगा। तो इंजंक्शंस लेने शुरू किए, पंचायतों से जो है वो अंडरटेकिंग दिलवानी शुरू की। आज ईश्वर की कृपा से और सरकार और पूरे समाज के साथ आने से भारत में 270 एनजीओज इसकी जो है अगुवाई कर रहे हैं। 271 ऑर्गेनाइजेशंस आर लीडिंग दिस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लीडिंग अ फ्लैगशिप प्रोग्राम कॉल्ड बाल विवाह मुक्त भारत। एंड इन द लास्ट 2.5 years, लाइक अप्रैल 3 साल मान लीजिए, अप्रैल 2023 से आज तक लगभग 5 लाख शादियां रोकी गई हैं, फिजिकली रोकी गई हैं कि ये शादी नहीं होगी पुलिस को बुलाने के बाद। तो अब एक शादी रुकती है तो पूरे फिर समाज में मैसेज जाता है। इसी तरह हजारों की संख्या में लोग बाल विवाह करने के लिए जेल गए हैं। कल मैं पढ़ रहा था कहीं जो है पंडित जी, बैंड वाले, टेंट वाले, सबके ऊपर एफआईआर कटी है। 16 आदमी कल जो है अरेस्ट हुए हैं कहीं। दुल्हन को लेके वो भाग रहे थे, 2 किलोमीटर पुलिस ने पीछा किया, रोका, बिटिया को घर भिजवाया और जिन लोगों ने करी थी शादी उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये एक शिफ्ट हुआ है कल्चर में। एट द एंड ऑफ द डे बिहेवियर चेंज इज पॉसिबल ओनली थ्रू द फोर्सेस ऑफ लव और लॉ। तो हमें एक तरफ जो है प्यार से बात करनी है और समझाना है कि मानिए, और दूसरी तरफ यदि कोई नहीं मानता तो उसको ये डर होना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा, आई विल नॉट गेट अवे विद इट। तो ये दोनों चीजों को साथ लेके हम चल रहे हैं, और अगर सब ठीक रहा तो मैं मानता हूं कि 2030 तक हम बाल विवाह को खत्म कर पाएंगे। और बल्कि अगले साल ये 23% की दर, 23% ऑफ प्रेवलेंस रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज विल फॉल टू 10% or less. Okay. By the end of 2027. थोड़ा barriers to reporting and justice पे बात करते हैं. When a child wants to report a crime, and when a child is going through sexual abuse, how easy is it for a child to go and get help and get justice? The biggest barrier is with us. अभी ये पहली जर्नी है, पहला स्टेप है जी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ जर्नी ऑफ 1000 miles। लेकिन जो सबसे बड़ा बैरियर है वो आप और हम हैं, वो बड़े हैं। हम सोचते हैं जैसे ही बच्चा अब्यूज रिपोर्ट करता है, माएं कहती हैं बेटिया चुप हो जा, बाप कहते हैं बेटे बोलना ही नहीं है। हम शेम को एसोसिएट करते हैं अब्यूज के साथ, अब्यूजर के साथ नहीं करते हैं। लड़कियों के साथ हम क्या कहते हैं, लड़की की इज्जत लुट गई। अरे इज्जत उसकी लुटेगी जो है गलत काम कर रहा है, या उसकी जिसके साथ अब्यूज हुआ है। ये हमारी बातचीत की भाषा है। इज्जत लड़की की नहीं खराब होती, इज्जत रेपिस्ट की खराब होनी चाहिए। दैट शेम मस्ट स्विच साइड्स, द ब्लेम मस्ट स्विच साइड्स। दैट इज व्हाट इज रॉन्ग इन द सोसाइटी। सो इट स्टार्ट्स विद अस। वी से ये रेपिस्ट वाला घर नहीं है, ये रेप विक्टिम वाला घर है, ये लड़की रेप विक्टिम है। हम रेपिस्ट को मुंह छुपा के घूमने की आजादी देते हैं, हम उसको जो है शेम नहीं करते पब्लिकली, और इसकी वजह से वी परपिचुएट दैट कल्चर ऑफ साइलेंस अगेन। तो ये जो मैं पहले कह रहा था, मैं रिइटरेट कर रहा हूं कि इट स्टार्ट्स विद अस। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन एंड स्टैंड ऑन देयर साइड। सेकेंडली, जब वो जस्टिस के प्रोसेस में चले जाते हैं, वी हैव दिस एंटायर फिलॉसफी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सो एट द सेम टाइम लेट 100 गिल्टी गो स्कॉट फ्री, बट 1 इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड। एग्रीड, 100% agreed. But why should 100 guilty go scot free? Protect every innocent and punish every guilty. When 100 guilty, in this case 100 rapists, are walking free, then thousands of girls are unsafe. That is what is wrong. So let every guilty be punished and let every innocent be protected. That should be the motto of the society. तो वो बच्चे के साथ जो बिगेस्ट बैरियर है वो पहले हम है, और उसके बाद रिविक्टिमाइजेशन है। रिविक्टिमाइजेशन घर से शुरू होता है, पुलिस थाने में जाता है, कोर्टों में जाता है, डीलेज में जाता है, अपील्स में जाता है। आज अगर एक बच्ची ये रिपोर्ट करती है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, उसका अगले 12 साल 15 साल हो सकता है कि
कोर्ट कचहरी के चक्करों में ही रहें। इस वजह से लोग कहते हैं हम इसमें क्यों पढ़ें, नहीं जाते। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, कितनी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं भारत में जो ये कह सकती हैं कि उन्हें कभी किसी ने सेक्सुअली हैरेस नहीं किया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, सड़क पे चलते हुए? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। लेकिन कितने हैं जो रिपोर्ट करते हैं? क्यों नहीं करते रिपोर्ट? क्योंकि जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है वो उनके साथ नहीं खड़ा। समाज जो है वो उनके साथ नहीं खड़ा। समाज जो है वो पावर एसोसिएट करता है वायलेंस के साथ और क्राइम के साथ। तो इमीडिएटली वो बच्ची जो विक्टिम है वो और ज्यादा विक्टिमाइज हो जाती है, या वो लड़का जो विक्टिम है वो और ज्यादा विक्टिमाइज हो जाता है, जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ते। तो सबसे बड़ा जो हमें चेंज लाना है बिहेवियर में, वो समाज के स्तर पे ये है, सोसाइटी के स्तर पे ये है, दैट वी मस्ट स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द विक्टिम। Stop shaming the victim and shame the alleged perpetrator. Shame must switch sides. Yes. Blame must switch sides. Shame must switch sides. That's a very good point actually that you have made. Shame must switch sides, because we've constantly been made to believe via the media, via newspapers, via anything that this is a rape victim, but not the alleged perpetrator, like I said. मैं ये बात सोच भी नहीं सकता कि जब हमारे कोर्ट जजमेंट्स में लिखते हैं कि ये लड़की भाग गई, तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं? लड़की भाग गई वर्सेस लड़की को कोई भगा के ले गया के बीच में पूरी दुनिया बदल जाती है। 12 साल की बच्ची भाग गई इन द नेम ऑफ लव अफेयर, और 25 साल का आदमी उसे भगा के ले गया जो किडनैपर है, उसको हमने माफ कर दिया। जो गलत है समाज में वो हमारी इस सोच से शुरू होता है कि हर बात पे तुमने रात को निकले क्यों, तुमने रात को कपड़े कैसे पहने थे। हमारे निर्भया कांड के बाद मुझे याद है धर्मगुरु जो बाद में जेल चले गए रेप को लेके, कन्विक्ट हो गए, उनको लोग चिल्ला चिल्ला के ताली बजा रहे थे क्योंकि वो कह रहा था कि उसको चाहिए था हाथ जोड़ के कि भैया मुझे माफ कर दो। ये लोग हमारे हीरोज हैं, इनको हम एक्सेप्ट करते हैं कल्चरली। तो हम रेप को, हम अब्यूज को, हम वायलेंस को एक्सेप्ट करते हैं। हमारा जो जब भी कोई लड़का या लड़की रिपोर्ट करती है, they are looking at the judiciary and the police. They are the face of governance. They are the face of upholding law and order. They are the face of justice delivery. वहां पे अगर मदद ना मिले तो आदमी कहां जाए? जब डिले होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल का, तो गवाह तोड़े जाते हैं, गवाह खरीदे जाते हैं, गवाह धमकाए जाते हैं, गवाह मार दिए जाते हैं। और इन तमाम प्रेशर्स को नजरअंदाज करते हुए जब हमारे कोर्ट ये कहते हैं कि अब लड़की ने अपने रेपिस्ट से शादी कर ली, तो इसलिए उसको माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अपराध का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि अपराध समाज के खिलाफ हुआ है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं हुआ। The law is against, the crime is against society. What is the role of society here? What are we saying? Because the girl, after 5 years, without receiving a rupee as compensation, without getting access to mental health, without getting any support from anywhere, finally वो थक हार के कह रही है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मैं अपने रेपिस्ट से शादी कर लेती हूँ। कोर्ट कह रहे हैं कि इनका तो अब बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इनको हम रहने देते हैं, ये तो लव अफेयर था। हम स्ट्रक्चरली, सिस्टमैटिकली इसको बढ़ावा दे रहे हैं। द क्राइम इज अगेंस्ट सोसाइटी, एंड द बिगेस्ट चेंज दैट इज नीडेड इज एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। ये जो पूरा डिबेट चल रहा है कंसेंट का, 16 साल के बच्चे को अगर 17 साल के बच्चे के साथ लव अफेयर हो जाता है तो कोई जेल नहीं जा रहा जी। जो ये खवाबाजी की बात है ना कि लोग जो है जेल चले जाते हैं, भारत के कानून में 18 साल से कम उम्र के बच्चे जेल जाते ही नहीं है। केवल और केवल जहां गैंग रेप हुआ है, जहां ग्रीवस हर्ट है, जहां एसिड अटैक है,
जहां मर्डर है, ऐसी चीजों में जहां गंभीर अपराध हैं, वहां पे बच्चे को जेल भेजा जाएगा। तो अगर लव अफेयर ही है तो 16 साल की लड़की का 17 साल के लड़के से ही तो होगा। 16 साल की लड़की का अगर 40 साल के बुजुर्ग के साथ, बुढ़े के साथ अगर है लव अफेयर, तो वो लव अफेयर नहीं है। सो दैट थिंग ऑफ eloped due to love affair needs to be taken off all legal documents. No acceptance of the word elopement. No child elopes. No child elopes. Children are victim of kidnapping or abduction. Kidnapping through enticement, abduction through deceit. And जब तक हम इसको बहुत ही सख्ती से एकदम सिस्टमैटिकली नहीं देखेंगे कि अक्रॉस ऑल सोसाइटी दिस इज गोइंग टू बी अनएक्सेप्टेबल, तब तक ये खत्म नहीं होगा। भुवन, थोड़ा सोशल मीडिया पे बात करते हैं। आपने रिसेंटली यू कॉल्ड फॉर अ बैन फॉर यंग चिल्ड्रन एंड अ मैंडेटरी एज वेरिफिकेशन यस टू गो ऑनलाइन। यस, नाउ आई वांट यू टू एक्सप्लेन इन डिटेल बिकॉज आई एम अ पेरेंट एंड यू आर अ पेरेंट and we are both parents to very young children. Explain this to me in detail like you would explain to maybe kids our age, not our age but our own kids. But explain it to me, how dangerous is social media for children? I would like to believe that I am a kid of certain age. Not 11 but ये कहा किसी ने कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो ये उसी तरह की बात है। आज बहुत शेरो शायरी हो रही है, वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप जो है इस तरह की बातें निकलवा रही हो तो जो है आदमी, ये एक हम सेगमेंट काटेंगे जहाँ पे भुवन ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे शेयर्स बोले। आई एम लविंग इट। बट यस, कमिंग बैक टू हाउ डेंजरस सोशल मीडिया इज फॉर किड्स। there is a saying, if you want to know the truth, the real face of a person, give him a mask, which is what social media has done. Anybody going on social media is wearing a mask, and then a 40-year-old can pretend to be a 14-year-old in love with a 13-year-old. Yes. मुझे किसी ने कहा, अभी थोड़े दिन पहले मैं परसों नरसों हैदराबाद में था, एक बड़ा वहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऑनलाइन चाइल्ड या ऑनलाइन अब्यूज़ के ऊपर एक बड़ा कंसल्टेशन किया। तो वहाँ किसी ने मुझे कहा कि सोशल मीडिया को आप बैन करने की बात कैसे कह सकते हैं, सोशल मीडिया इज बीइंग यूज्ड फॉर एजुकेशन। एंड आई सेड गिव मी 10 of the best schools in the country and please call them and ask them how many are using Facebook, Instagram or any other social media tool to impart education. No, they are not. Social media is for entertainment. Social media is for connectivity. Social media has to be for a certain age of people to understand certain things about life. हम अगर सोशल मीडिया पे अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, it is an addiction. And they are being designed in such a way that they are addictive in nature. तो आप फंडामेंटली बच्चों को कहाँ से दूर लेके जा रहे हैं? आप कह रहे हैं भाई एजुकेशन से दूर रहो, क्या कहते हैं, किताबों से दूर रहो, स्पोर्ट्स से दूर रहो। सोशल मीडिया इज द न्यू टेलीविजन। आज से 25-30 साल पहले कहा जाता था एडिक्टेड टू टीवी। एंड प्राइमरीली द स्क्रीन एडिक्शन इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट स्टॉप्स द ब्रेन फ्रॉम फंक्शनिंग। आप बहुत छोटे बच्चों को ये कहते हैं कि आप इधर ही घूमते रहिए, तो आपका जो खुलना चाहिए दिमाग वो खुल नहीं रहा। मैं इतनी सारी डिटेल में ज्ञान की बातें नहीं करूंगा कि साइंस क्या कहता है और हेल्थ क्या होती है, कंसर्न क्या होती है, लेकिन मुझे एक बात और लगती है एज अ पेरेंट, यू सेड, मैं जितना वक्त स्क्रीन पे बिताता मैं उतना सेल्फ सेंटर्ड भी होता हूँ। आई एम नो लॉन्गर लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग इन माई एनवायरमेंट। मैं सोशल मीडिया पे डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ, मैं अपनी फैमिली से कट गया। मैं उसके बाद कहीं और बैठा हूँ, मैं अपने फ्रेंड से कट गया। मैं जैसे ही इन अ क्राउड आई एम ऑल अलोन, addicted and like just being with my screen, I am self-centered and eventually I will become selfish. This has long-term repercussions on society on the whole.
it is said man is supposed to be a social animal. That social animal is no longer in a safe space and it is in an unreal space. तो सोशल मीडिया पे जो मैंने पहले कहा था कि जो चैलेंजेस हैं वो हैं आइडेंटिटी के. People are faceless, they are nameless, they are not, they are real people, so they must be identified. अगर मैं भुवन रिभू आप नेहा बेदी जी से बात करना चाहता हूं तो मैं अपने नाम से करूं ना. इसमें क्या दिक्कत है? जैसे ही मैं अपना नाम बदल के किसी से बात करता हूं, कुछ छुपा रहा हूं. There's a red flag. There is a red flag. Yeah. मैं कुछ छुपा रहा हूं तो क्या छुपा रहा हूं? जी. I don't want my identity to be disclosed. अब कोई ये कहे कि भाई people are able to express themselves better when they are not disclosing their identity. मैं भी तो यही कह रहा हूं. Why? What is that expression going to be? मैं anonymously पोस्ट कर रहा हूं, एक बात है. मैं anonymously चैट कर रहा हूं, दूसरी बात है मुझे पूरा अधिकार है अगर मैं एडल्ट हूं तो. 12 साल की बच्ची या 10 साल का बच्चा तो अभी नहीं समझ रहा ना ये बात. So for the protection of young children, very young children, it is essential that they should be kept off social media for their development, for their growth, and for their safety and protection. It is a protection issue, it is a health issue, it is an education issue, and it is an issue of how we want our society to be 10 years, 20 years from today. Do you think parents should allow their children to make their accounts on YouTube and on Instagram? Absolutely not. And for young children, I'm talking about young children. So I'm going to make a distinction there. Children above the age of 16 can do these things with proper identification. And I am saying make identification mandatory for everyone who wants to interact. जी. मैं YouTube पे अगर हूँ, या YouTube तो चलिए ठीक है मैंने कुछ किया पोस्ट करने के लिए, लेकिन अगर मैं किसी से चैट कर रहा हूँ तो पता होना चाहिए ना जिससे चैट कर रहा हूँ उसकी एज क्या है और उसकी रियल इंटेंशंस क्या है. तो ये जो आइडेंटिटी का डिस्क्लोजर है, स्पेशली इन कॉन्वर्सेशंस विद चिल्ड्रन, दैट इज नेसेसरी. मैं जहाँ की बात कर रहा था अभी तेलंगाना की, वहाँ पे एक बात उठी कि दे हैव डेल्ट विद 120,000 1,20,000 टिपलाइन केसेस. तो मैंने पूरी भरी भीड़ में पूछा कि ये टिपलाइन केस क्या होते हैं, कोई बताएगा? तो 2 हाथ खड़े हुए, किसी को नहीं पता था. 1,20,000 चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज और एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल के फाइलें, यानी 1,20,000 बच्चों का रेप या अब्यूज या किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन. तो ये अगर हो रहा है हमारे समाज में तो कहीं कोई कर तो रहा ही है. अब वो बच्चे कहां से आ रहे हैं? उन बच्चों की कंसेंट तो है नहीं. कोई ना कोई किसी ना किसी तरह झूठ बोल के, डिसीव करके, एंटाइज करके ही करा रहा है, या आउट एंड आउट फोर्स है. तो इसलिए ये जरूरी है कि बच्चों की सेफ्टी पैरामाउंट है. अगेन आई विल रीइटरेट, इफ वी फेल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, nothing else we do in life matters. If we fail to protect children from harm and abuse today, and who's earning from these social media, these things? Only the companies. It is also true for certain other things like gaming. Social media में थोड़ा सा क्रैकडाउन हुआ तो लोग गेमिंग पे शिफ्ट हो गए. काहे के लिए? क्योंकि बच्चे अगर गेम खेल रहे हैं तो उनको वहां पे अब्यूज किया जाए. अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज आई थी गाजियाबाद में, जो 3 sisters they died by suicide. They were also addicted to some Korean game or something like that. Then there was a news about this Roblox game also which has come, and people are posing as as children on that game to target young children who they are playing with. Yes, and that is exactly what I am saying. If you disclose the identity, the child knows I am playing with an adult, they don't want to play with an adult. If you disclose the identity, unless and until it is open, one there is always a vulnerability to abuse. Secondly, मैं दूसरी बात जो उस पर डिमांड की थी वो ये थी कि even for the OTT platforms, even for all the other things that children have access to, जैसे अब मैं मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, वहां पे फर्स्ट पेज पे लिखा होता है कि ये किस एज अप्रोप्रिएट है. ठीक है. लेकिन अगर आप उस फिल्म के ऊपर हमेशा लिख के रखें कि ये एडल्ट है, तो अगर इफ अ पेरेंट वॉक्स इनटू अ रूम एंड अ चाइल्ड इज वाचिंग एन एडल्ट फिल्म, द पेरेंट नोज दैट द चाइल्ड वाज वाचिंग एन एडल्ट फिल्म. सो द एज सर्टिफिकेट मस्ट बी
put on top right or top left corner at all times. Yeah. That is the second thing I had proposed or suggested. And the third thing I had said was, technology is shifting and it changes, and new and emerging forms of technology comes out for abuse. That is why, regardless of what is happening in the other political space, the online and the technological enabled issues must find a place for a parliamentary debate in every session. Every session of parliament must dedicate 1 or 2 days only to discuss online safety and technological advancements. क्योंकि अगर पॉलिसी आप आज डिस्कस करना शुरू करोगे फॉर समथिंग दैट इज अ क्राइम टुडे, और 1 साल बाद वो बनेगी या 1.5 साल बाद बनेगी, तब तक तो वो शिफ्ट हो चुका है इशू. तो इसलिए the policies and the institutions also have to show that nimbleness of approach. I'm actually very happy that the government of India has recently come out with these rules कि 3 घंटे में बंद करो. If a content has been reported to be abusive, 3 घंटे में बंद करो. That is the kind of decisiveness that is needed. But don't you think there should be some sort of accountability from these big tech giants as well? 100%. 100%. For child safety. 100%. In fact, ये जो है मैं, so I work with an organization called Just Rights for Children. Just Rights for Children is a network and a social movement of over 300 organizations working in India, Nepal, Africa, US and UK, and we are trying to also provide protection to children in other parts of the world, and we work primarily on child safety and child sexual abuse. But how the name came about was exactly this. A man was accused of downloading videos of 10, 12-year-old boys being sexually abused. And this was identified by the FBI, who gave it to the Ministry of Home Affairs, who gave it to the Chennai police, and in a good turn of events, the police acted, the man was arrested, he was convicted by the lower court. He went to the High Court of Madras. And the High Court, in its wisdom, said that downloading or mere downloading of child pornography is not a crime. Now it was on the front page of every newspaper. If mere downloading of child pornographic content is not a crime, then you are creating demand, which means that a child would be abused somewhere for that demand. So we thought at that time, we were a loose network running a program for child protection. And I asked all my, at that time, 160 colleagues were there, 160 NGO partners. I asked them that this is a case that we should appeal against. Now, in a criminal case, it's a slightly technical issue. Either the state can go in appeal, or the victim can go in appeal, or the accused can go in appeal. Here, the victims were not found. They were nowhere there. It was just a video. The accused had been acquitted. So he was happy, he had walked free. And the state chose not to go in appeal. So we, these NGOs got together, 104 of them, and we created this network called Just Rights for Children Alliance. Okay. And we went to the Supreme Court of India saying, we, the people of India, are also representatives of the state. The government may be one representative, but we are anguished. We are agitated. How can such injustice be allowed to go? And if a child is being allowed to be raped and that video being allowed to be downloaded, that demand being created, then something is wrong. Within 6 months, the Supreme Court of India overturned that judgment. Within 6 months. तो भारत में जो कहा जाता है ना, तारीख पे तारीख, वो कुछ सब हट गया साइड में. हमने फरवरी 2024 में एक केस फाइल किया और सितंबर 2024 में इस पे जजमेंट आ गई. The responsibility of big tech companies was laid down by the Supreme Court in this judgment called Just Rights for Children versus Harish and state. And now, all the big tech companies in India have to report all offensive material and abusive content in India. And therefore, the accountability must lie
with the principal, and the principal is the person earning the profit. जी. किसी भी तरह के इस तरह के organized crime या abuse में there are two principles. One, look beneath the surface, and second, follow the money. Follow the money. Where the money is going, that is where the crime is. That is where the accountability must lie. So the accountability in these cases must lie with the big tech companies, and that is also the policy in the country today. However, it also lies with the schools to teach our children stay away from social media. It lies with the parents to say that we will not allow social media. And what we need actually is somebody to step up and say, I will create instruments like mobile phones that are age appropriate. कि इसमें आप WhatsApp तो कर सकते हो, लेकिन आप That's very इसमें interesting. इसमें आप Instagram नहीं कर सकते. It is called prevention by design. In the design philosophy of our products, of our services, we prevent abuse in the design itself. That is what we need to work towards. Well, let's talk a little bit about the mindset of an offender. Now, this particular thing has मुझे बहुत interest है when men commit these crimes, and now there is no age now for committing these alleged rapists don't have any age. You have, through the course of your 20 years, met many of these offenders, and you have spoken to them at length. आप मुझे बता भी रहे थे. What makes them do these crimes? What is the main force which is driving them? Is it disregard for law? Is it disregard for women? Or are they very influenced by this toxic masculinity culture in Bollywood? Or what is it? All of the above and much more. Okay. There is a culture of impunity. I can do this because I will get away with it. That is what must go. That culture of impunity. So if we have to end the crime, we have to do away with that culture of impunity, that culture of silence, that culture of blaming the victim, and that culture where the victim will be continuously re-victimized in the system or by the society. So ये ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं किया जा सकता, खत्म तो किया जा सकता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक साथ आना पड़ेगा, और इसके लिए हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है. आपने बोला था भुवन, when I asked you specifically about why rapists rape, and you said that एक आदमी जो आज घूर रहा है, कल वो हैरेस करेगा, कल वो टच करेगा, और जब उसको तभी भी नहीं रोका जाएगा, वो परसों जाके रेप कमिट करेगा. आपने ये बोला था. And this is what I wanted to know about the rapist mindset, because जब मैंने आपसे पूछा था, you had said that they do this because उनको पता है कि they will not get caught. They do this because they believe they can. It is as simple as that. Yeah. A person commits a crime because he believes he can and he will get away with it. अभी हम न्यूज़पेपर्स में देख रहे थे, एक 14 साल के लड़के ने किसी छोटी बच्ची का रेप किया, और उसकी माँ आई और उसको लेके चली गई. जी. हमने दुनिया भर की इस तरह की चीज़ें होते हुए देखी हैं, जहाँ पे लोग परेशान करते हैं और उनके घर वाले ही उनके साथ कहते हैं, नहीं मेरा बेटा तो कर ही नहीं सकता. माएँ भूल जाती हैं कि वो पहले एक महिला भी हैं, एक लड़की भी हैं. तो ये परपेचुएट होता है. दूसरा, हमारे राजनेता कहते हैं, हमारे धर्मगुरु कहते हैं, अरे भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है. ये भी तो बात है, हमने सुना है ये होते हुए. लोग उस पे तालियां बजाते हैं. People abuse girls or children because they believe they can. That is impunity. दूसरा, देखिए, ये हम उसको रोमांटिसाइज वगैरह करने की बात तो कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू हाउ वी थिंक, हाउ वी ऑपरेट, हाउ वी ऑब्जेक्टिफाई women in everything. Children also. So it's not that boys don't get abused. A lot of boys get abused but they are not able to come out with it. Again, same cheese. The shame. And it is more so in case of the boys because it is unthinkable and unimaginable. So it works both ways. That is why the 0 to rape needs to be understood, identified, and at every stage stopped. And after
rape if it has happened, then the society must provide rehabilitation services, mental health support, fast track courts, immediate justice delivery, compensation for the victim, and in such a way that the shame is with the accused. Media has a very important role to play in that. Often we don't talk about children as children. 18 minors, 25 minors. It's not minor, it's a child. If they are rescued from exploitation or abuse, you have to call that a child was being abused, something like that. 18 minors rescued is very different than 18 children rescued from sexual abuse or exploitation. It is that thought process. Also, we often tend to get desensitized as people. We become numb when we Numb. see, hear, or see these cases. Yes, we So, do. as a society, we believe not me, not here, not now, not possible. एक तरफ तो ये है, जी, not me, not here, not now, not possible. मेरे साथ हो ही नहीं हमारे साथ सकता, तो हो ही नहीं सकता। इस जगह तो हो ही नहीं हाँ। सकता, अब दिल्ली में थोड़ी हो सकता है, और आज के टाइम पे ये सब नहीं होता, पहले होता था, खत्म हो गया। कितने लोग भारत में सोच सकते हैं कि अभी 3 साल पहले तक भारत में हर 4 में से एक बच्ची की शादी हो जाती थी एज चाइल्ड मैरिज, विच मीन्स हर 4 में से एक बच्ची की ऑफिशियली अगर वो शादी हो जाती है और उसका अब्यूज हो जाता है तो वो शिकार थी अब्यूज की, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये एक तो ये बदलने की जरूरत है, और दूसरी तरफ ये बदलने की जरूरत है जो डिसेंसिटाइजेशन का कल्चर है, नम होने का कल्चर है, कि अरे यार ये तो होता रहता है, ये होता इसलिए रहता है क्योंकि हम इसे होने देते हैं। अभी 3 साल पहले मैंने चाइल्ड मैरिज के खात्मे के ऊपर एक किताब लिखी, When Children Have When Children. children have children. Children. The tipping point to end child marriage. How to end child marriage. जिस दिन वो किताब को पब्लिक में आना था, तो मेरी ये सोच थी कि ये जो है पूरे देश में एक्शन प्लान की तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सर्वाइवर्स लॉन्च करें। ये कोई ऑथर की इसमें कुछ नहीं है, इट हैज टू बी एन एक्शन प्लान फॉर द कंट्री। जिस दिन ये किताब लॉन्च हो रही थी भारत में 250 जगह, वहां पे उसी दिन ये डर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यूएन सेक्रेटरी जनरल ने किया कि अभी चाइल्ड मैरिज को खत्म होने में 300 साल लगेंगे। उसी दिन उन्होंने डर सुबह अखबार में आया। अच्छा। तो जहां हम ये मान के चल रहे थे कि इतने साल लगेंगे, वहां भारत में 1/3 ऑफ द ग्लोबल चाइल्ड मैरिज प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स, और 3 साल में हमने ये करके दिखा दिया कि हम 5 साल में खत्म कर देंगे। अगर हम भारत में इसे खत्म कर सकते हैं तो 5 साल में जो है 1/3 ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम विल कोलैप्स। What I'm trying to say is change is possible. It is said that if you want to see the real face of a person, give him a mask. That is what social media has allowed people to do. Live with masks and then do all sorts of wrong in society. Social media, what is social media? The word itself is a creation of like 20 years. What internet has allowed in the world is for crime to become impersonal. जी। पहले क्या था, क्राइम के लिए जरूरी था कि एक आदमी दूसरे को ढूंढे, पकड़े और उसके बाद कोई अपराध करे। आज अपराध कोई अमेरिका में बैठा आदमी हमारे बेडरूम में बैठी हुई बच्ची के साथ कर सकता है, और हमें यह समझ नहीं आ रही। We believe that Instagram is for entertainment. It is not. It is a tool which can be used by people to take naked pictures of our children, or even take pictures and use the technology to disrobe them. And the people who are earning money from these things are doing it systematically and systemically. इलॉन मस्क को पता नहीं है कि ग्रोक जो है वो बच्चों को किस तरह से डिस्टर्ब करता है। What they are doing is simply using the vulnerability of our children to earn money. पहले हम सोचते थे कि ट्रैफिकिंग एक आदमी जाएगा तो गांव में होगी। आज एक ट्रैफिकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरह की यूज करके 100 लड़कियों को एक साथ बहला रहा है और कर रहा है इस तरह की ट्रैफिकिंग। Crime has entered our bedrooms without us knowing.
Our children are no longer safe in the sanctuary of their homes, in their beds. Parents are thinking हमने स्मार्टफोन दे दिया, हम प्रोग्रेसिव हैं, जी हम एडवांस्ड हैं. वो इस तरह की सोच रखते हैं कि हम तो फ्रेंड्स हैं बच्चों के, वी आर बीइंग एज फ्रेंड्स. योर जॉब इज नॉट टू बी फ्रेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन, योर जॉब इज टू बी पेरेंट्स. एंड एज पेरेंट्स योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज चाइल्ड सेफ्टी. सुबह 6 बजे उठ के अगर बच्चे, हम क्या सोचते थे, व्हाट इज द रूल ऑफ लाइफ? सुबह उठिए, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. क्यों? सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, सुबह उठिए, तैयार होइए, स्कूल जाइए, सुबह उठिए और बेड से ही सबसे पहले इंस्टाग्राम शुरू कीजिए. तो जो आपको मैसेजेस रात को आ रहे हैं, दे आर मेकिंग अ चाइल्ड लिव इन एन ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स. And they are making a person believe in realities that do not exist. It is a question of not only safety, जहां पे आप ये सोचते हैं कि कोई आके मेरे बच्चे को अब्यूज तो नहीं कर रहा. कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की फ्रेंड्स लिस्ट के सारे फ्रेंड्स को जानते हैं, और कितने वो फ्रेंड्स हैं जो कि एक्चुअली बच्चा भी उन्हें जानता है, कोई नहीं जानता. सो इसलिए आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते. Why I say social media should be banned for young children completely, 100%, is because it has become the primary tool of exploitation for traffickers and online sexual predators. It is predators that are using social media, 40-year-olds trying to pretend to be 14-year-olds to speak to young children, whether on online platforms or whether on gaming platforms. And prevention by design approach by itself should mean that whether it is social media companies, whether it is the people who are making these instruments, they have to be clear कि ये बच्चा WhatsApp तो कर सकता है, ये Instagram नहीं कर सकता. ये Instagram तो कर सकता है, इसमें इस तरह का कंटेंट आएगा ही नहीं. Facebook, Instagram and all these other companies can say whatever they want about their approaches for taking harmful content down. But that is an afterthought. They are doing fantastic work. I believe they are doing fantastic work. But at the same time, because it is not an approach of prevention by design, अगर मेरे बच्चे ने harmful content देख ही लिया और मैं उसके बाद रिपोर्ट कर रहा हूं, तो हार्म तो हो चुका. अगर कोई मेरे बच्चे को अप्रोच कर ही चुका है और उसके बाद मेरे बच्चा कुछ बता देता है और रिपोर्ट कर देता है और उस आदमी को टेक डाउन भी कर दिया जाता है उसका अकाउंट, तो भी हार्म तो हो चुका. इफ अ चाइल्ड इज अब्यूज्ड वंस, द चाइल्ड कैन नेवर बी होल अगेन. आफ्टर अब्यूज वी आर सिंपली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ इसको मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे दो, इसको फलाना कर दो, इसको ढिमका कर दो. वो सब बाद की बातें हैं. एंड एक तरफ तो सोशल मीडिया का एडिक्शन है, दूसरी तरफ देयर इज अ फुल फ्लेजेड स्टॉकहोम सिंड्रोम हैपनिंग वेयर चिल्ड्रन बिलीव कि जो आदमी उनको अब्यूज कर रहा है वो उनको प्यार करता है. वेयर चिल्ड्रन बिलीव दैट उनके पेरेंट्स ठीक नहीं कर रहे. वो जो एक मेक बिलीव ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स है उसमें वो ज्यादा अच्छे खुश हैं. वो 3 लड़कियां जिन्होंने अभी सुसाइड कर लिया, एक कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस होके, उनके माता पिता की क्या गलती थी? सिर्फ ये कि वो ये कह रहे थे कि ये जो है कोरियन इस तरह की चीजें और इस तरह का बिहेवियर मत करो, हम तुम्हारा स्मार्टफोन ले लेंगे. हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं क्राइम को. दैट इज व्हाई वी नीड द प्रिवेंशन बाय डिजाइन अप्रोच. दैट इज व्हाई वो होना ही नहीं चाहिए कि बच्चे वहां तक पहुंच जाएं और उसके बाद हम उनको समझाते फिरें. इसलिए यह जरूरी है कि इफ वी डोंट वेक अप टुडे, 10 years from today we will simply have nothing left. ये एक बात है कि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा. आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा. हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी. सन्नाटे के पीछे से फिर एक सदा ही आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं. कोई बच्चा आज सेफ नहीं है. किसी तरह की प्रोटेक्शन जो है वो आज काम नहीं करेगी अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है. तो केवल एक ही चीज चाहिए, उसको
उस चीज से ही दूर रखो जहां अब्यूज हो सकता है, कम से कम तब तक till the child is mature enough to understand. You're very right. Bhuvan, let's talk a little bit about the future now of child protection. And we are told that India is right now at a tipping point. Okay. And I want to know, what is your vision for child protection in the next, let's say, 5 to 10 years from now? First and foremost, as a nation, as a society, as people, we have to look at a child's full potential by incorporating these things. Prevention by design in the digital spaces, using technology to preempt and prevent crime against children, robust justice delivery mechanisms that are fast tracked, that are survivor and victim centric, that ensure that every innocent is protected but every victim, every accused, every guilty goes punished, convicted. And in a fast paced, time bound manner, compensation services, mental health support, rehabilitation support. Every child in the country in either school or skill or connected to a scheme, starting with 100,000 villages being declared child protection villages where there is zero trafficking, zero child marriage, every child is free and living his or her full potential. Okay. And a society that puts children first. That is what I would think. That is your vision. Yes, the foundation of Viksit Bharat Ji. is in the safety, the protection and the full potential of our children. हम अपने बच्चों के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे? What are we leaving behind? Are we leaving behind an environment where our children grow up after having been abused? And they believe कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया हमारे लिए? Or they grow up in an environment where they believe that our parents saw what was happening was wrong and they chose not to stay silent. They chose to act. They chose to defend. We are actually creating a world for our grandchildren. Each adult must know that every day the decisions that they take is for their grandchildren. And if we don't act today, then our grandchildren will not be safe tomorrow. I agree. I guess, in a way, this is what each one of us owes to the next generation, is what I feel. I mean, through the takeaway from this conversation has been that what, as a society, are we doing that we can provide for the next generation to live a better life? Whatever we think is wrong with the world can be resolved if we are just. Whether it is climate change, whether it is women's safety, whether it is children's safety, whether it is education, whether it is development. What we need to be is to be just. Just in our approach towards life, just in with ourselves, just with our children. That equilibrium is going to define, and that equilibrium is going to create that environment where our children and us, we achieve our full potential. If our children were, God forbid, were to be abused today, we can't have a normal life from tomorrow. The normalcy of our lives depend upon what we do for the safety of each one of us. There is a thing that we use often in Sanskrit called Vasudhaiv Kutumbakam, which means that the world is one village. But that is not what that shlok is. That shlok is Ayam Nijah Paroveti Gadana Laku Chetasam, which means ये मेरा है, ये तुम्हारा है. ये छोटे हृदय वाले लोगों की सोच होती है. ये चीज बच्चों पे भी लागू है, ये सेफ्टी पे भी लागू है, ये हर चीज पे लागू है. अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम. ये पूरा श्लोक है. जिन लोगों का हृदय विशाल होता है उनके लिए पूरी दुनिया एक परिवार के समान है.
पूरी दुनिया एक परिवार तब बनती है जब हम अपने छोटे छोटे एक्शंस में, if we are just. So that is what I would like to say. As adults, the first and the foremost thing that we have to be is to be just. Is to be just. Thank you so much, Bhuvan, for giving me your time Thank you. and speaking so extensively on the Lifesaver Show. I think this is for every parent, this is for every adult, this is also for every child. What I think I have taken away from this entire brilliant conversation with Bhuvan. Thank you once again. Thank you. Thank you for having me on your show.